محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. سی ایم KCR کی قیادت میں تلنگانہ ریاست کووڈ کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار. وافر مقدار میں آکسیجن و ادویات موجود. ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی. انہوں نے مختلف منڈل کا کیا دورہ و حالات سے لی واقفیت حاصل. لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد 16 مئی کو عقیدت مندوں کے لیے محکمہ پولیس و وقف بورڈ کی جانب سے بند کیا گیا درگاہ حضرت سید سعداللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ. خانگی ہاسپٹل و اسکیننگ سینٹر انسانیت کی مثال پیش کرے. منمانی رقم نہ وصول کرے اور صرف 2000 روپیوں میں CT اسکین نکالنے کی ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے کی ہدایت جاری. بودھن کی رہنے والی ایک سرکاری ٹیچر رضیہ بیگم نے کووڈ دور میں قائم کی انسانیت کی نئی مثال. ان پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی رپورٹ. دہشت گرد اسرائیل کی تمام مصنوعات کو بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی انسانیت غیرت کی مثال پیش کرے. صدر جمعیت علماء حافظ لئی خان کی اپیل. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. کورونا وبا و لاک ڈاؤن کے مد نظر آج 16 مئی کو درگاہ حضرت سید سعداللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت کے اگلے احکامات تک کے لیے عقیدت مندوں کے لیے کیا گیا بند. کورونا وبا کے سبب اس ماہ کی 12 تاریخ کو پوری ریاست میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، جس میں تمام مذہبی مقامات کو بھی چند یوم کے لیے بند کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی، جس طرح سال گزشتہ کیا گیا تھا. لیکن عہدیداروں کی غفلت کے سبب آج یعنی کہ 16 مئی کو ضلع وقف بورڈ آفیسر نے درگاہ حضرت سید سعداللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ پہنچ کر محکمہ پولیس کی مدد سے لاک ڈاؤن کی مدت تک یا پھر وقف بورڈ کی جانب سے احکامات آنے تک مخفل کیا. واضح ہے کہ درگاہ شریف کو ہر سال وقف بورڈ کی آمدنی کے لیے ٹینڈر جاری کیا جاتا ہے، جس کے سبب اس سال تاخیر سے بند کیا گیا ہے. نہ شہرت کا جنون نہ سیاست کی لالچ، پھر بھی اس کووڈ کے دور میں خدمت خلق کی نئی مثال قائم کرتی ہوئی بودھن کی ایک سرکاری ٹیچر رضیہ بیگم کی جدوجہد و خدمات پر روشن ٹی وی کی جانب سے خصوصی پیشکش. نظام آباد ضلع بودھن مستقر سے تعلق رکھنے والی محترمہ رضیہ بیگم، جن کو آج نہ صرف ضلع میں بلکہ پوری ریاست میں آئرن لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے گزشتہ لاک ڈاؤن میں اپنے بیٹے کو گھر واپس آنے کے لیے 1400 کلومیٹر کا سفر اکیلی اسکوٹی پر طے کرتے ہوئے گھر واپس لایا تھا. یہ محترمہ پیشے سے سرکاری ٹیچر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کووڈ دور میں بے لوث و بے باک انداز میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک 100 ایسے خواتین جن کا انتقال کووڈ سے ہوا ہے ان کی آخری رسومات انجام دی ہے. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے پریشان حال غریب عوام جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود علاج سے قاصر ہے، ایسے افراد کو ہاسپٹل منتقل کرتے ہوئے ان کا مفت علاج کروانا وہ حکومت کی مراد فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے اور خود مریض کے ساتھ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ان کی تیمارداری کرتی ہے. حال ہی میں انہوں نے عید الفطر کے دن ایک معصوم بچہ جس کو شدید علاج کی ضرورت ہونے کے سبب ان کے ہمراہ حیدرآباد جا کر نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا اور آج بھی انہی کے ساتھ رہتے ہوئے مکمل تیمارداری کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کووڈ کے دور میں گھر گھر ادویات کی تقسیم و قوت مدافعت میں اضافے کے لیے ادویات بھی تقسیم کیے گئے تھے، جو ایک قابل ستائش اقدام ہے. جہاں ایک جانب سے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو دوسری جانب وہ اپنے طلباء کے لیے بھی خدمت کے جذبے کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں.
रुकने संभली अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना मुतासरीन में खाने की तकसीम का अमल जारी। रुकने संभली अर्बन निजामाबाद मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और इनके मावरीन को मुफ्त खाने की तकसीम का आगाज किया था। आज 10वें दिन भी जारी रहा। आज से 10 दिन के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी शहर में कायम किए गए 6 मराकिज़ पर तैयार शुदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गए, जिससे 1200 अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। शहर के अहम इलाकों विनायक नगर, हनुमान मंदिर, वनी चौराहा, नेहरू पार्क, खलीलवाड़ी, कंटेश्वर मंदिर के पास 12 बजे दोपहर ता 2 बजे दिन के दरमियान मुफ्त खाने की गाड़ियां पहुंचकर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और इनके अफराद खानदान के मकानात पर खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा कॉल सेंटर पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद जो होम आइसोलेशन पर है और इनसे वाकिफियत रखने वाले अशखास सुबह 10 बजे दिन ता 6 बजे शाम के औकात कार में कॉल सेंटर नंबर 7207392709 7207392708 पर फोन करने पर इन्हें घर पर खाने की सरबराही अमल में लाई जाएगी। ప్రపంచవ్యాప్తంగా కావచ్చు, దేశవ్యాప్తం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరి కరోనా విపత్తసయం అందరికీ తెలిసిన విధమే. మరి దానిలో భాగంగా మరి రోజు దాదాపు 2000 నుంచి 2500 మంది కరోనా పేషెంట్స్ అటెండర్స్కి మరి బిగాల గణేష్ గుప్తా నగర ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఆ భాగంలోనే కానీ ఇప్పుడు చూశారు మీరు, ఇది 2 ఇండ్లు పాజిటివ్ ఉన్నాయి. ఆదర్శ్ నగర్లో నల్లాన్మల్ బ్యాక్ సైడ్లో మరి హోమ్ డెలివరీ ఇవ్వడం జరిగింది. कोविड दौर में खानगी हॉस्पिटल की बेहतरीन खिदमत, लेकिन फीस में कमी करने व स्कैनिंग की रिपोर्ट मरीज को फराहम करने व स्कैनिंग के लिए मनमानी फीस वसूल न करने के लिए रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर जिले कलेक्टर ने दी तमाम हॉस्पिटल व स्कैनिंग सेंटर के जिम्मेदारों को हिदायत जारी। आज रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की हिदायत पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिले के तमाम हॉस्पिटल व स्कैनिंग सेंटर जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और कहा कि कोविड के दौर में खानगी हॉस्पिटल की जानिब से काफ़ी खिदमत अंजाम दी गई। इसी तरह स्कैनिंग सेंटर पर ज्यादा रकम की वसूली पर रिपोर्ट मरीज के हवाले न करने की शिकायत महसूल हो रही है। इसी तरह इस फीस को सिर्फ 2000 रुपये करने और खानगी हॉस्पिटल में मनमानी फीस की वसूली को रोकते हुए इंसानियत की मिसाल कायम करे ताकि अवाम में हॉस्पिटल की अच्छी शनाख्त आए। इसी तरह इन्होंने कहा कि जिले में अभी वाफिर मकदार में रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन मौजूद है। अगर किसी मरीज को किसी तरह की मदद के लिए वो इनसे राब्ता कर सकते हैं। इस इजलास में DMNHO व IMA जिम्मेदार मौजूद थे। जमीयतुल उलमा चंदूर मंडल की जानिब से गरीब लड़की की इमदाद। मुफ्ती अब्दुल मजीद खासमी सदर जमीयतुल उलमा मंडल चंदूर की कोशिशों और मुकामी अफराद के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 माह में कौम व मिलत के कई एक फलाही व रिफाही काम अंजाम दिए गए, जिसमें गरीब व ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी में सामान जहेज की फ्राहमी, मौसम गर्मा के मौके पर बिला लिहाज मजहब व मिलत गाँव के अहम मकामात पर ठंडे और मीठे पानी का इंतजाम शामिल है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी और मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब व दीगर जिले अराकीन की हिदायत पर एक मुस्तहिक लड़की की शादी के लिए मुकामी जमीयत के ताउन से बुप्पापुरी में पलंग बिस्तर का इंतजाम किया, जिस पर अहले खाना ने तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा मंडल चंदूर के जिम्मेदारान ने मुसलमानों से अपील की कि वो अजीम जमात का हर एतबार से साथ देकर खिदमत खल्क के लिए पेश रहे। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप लोग जानते हैं जमीयतुल उलमा हिंद चंदूर के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीनों से काम हो रहा है और मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हो रहा है। जमीयत जो चंद निज़ामाबाद की है, मौलाना समीउल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब, इन हज़रात की निगरानी में पिछले में भी पलंग बिस्तर दिया गया है। आज भी भोपापुर के गरीब शख्स की बेटी की शादी में पलंग बिस्तर दिया जा रहा है जमीयतुल उलमा की तरफ से। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जमीयत को मजबूत बनाएं और जमीयत को मुस्तहकम। दहशतगर्द इसराइल की तमाम मसनूआत का बाइकाट करे, जमीयतुल उलमा व जिले निजामाबाद की अपील।
مسجد اقصی میں اسرائیل کی کھلی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور مسلم ممالک عالمی برادری انسانی حقوق کی جھوٹی دعوے داری تنظیمی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دہشت گرد ظالم و غاصب اسرائیل مسجد اقصی میں گھس کر عبادت میں مصروف فلسطینیوں، مرد و خواتین و معصوم بچوں پر کھلے عام فائرنگ کرتے ہوئے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی اور انسانیت کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ یاد رکھیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ مظلوم فلسطینیوں کی آہیں اور ان کی قربانیاں خالی نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر آج مسلم ممالک نے ہوش ناخن نہ لے تو اور عملی سخت اقدامات نہ اٹھائے تو کل آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہوگا کہا نہیں جا سکتا۔ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے صدر حافظ لئی خان صاحب اور سیکرٹری غلام رسول قاسمی صاحب تمام مسلمانوں نے نظام آباد سے گزارش و اپیل کرتے کہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اسرائیل کی تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ از غلام رسول قاسمی، سیکرٹری جمعیت علماء و امام خطیب مسجد یوسفیہ ہتائی نظام آباد۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمان ساری دنیا میں عبادات میں، روزوں میں، صدقات میں، نفلی عبادات میں مصروف ہے، اور ہم نے نیوزوں میں، ویڈیو میں دیکھا کہ کس قدر درندگی کے ساتھ اور وحشیانہ سلوک کر رہی ہے اسرائیل کی فوج، جو مظلوم فلسطینیوں کے اوپر نماز کے موقع پر ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ میں اس پر سخت مذمت کرتا ہوں، اور عالمی جو عدالتیں ہیں جو آنکھ بند کر خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں۔ کس طرح انسانوں کے اوپر درندگی کی جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اس پر میں جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اگر ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان ظالم ریاست جو اسرائیل ہے اس کی مصنوعات کا، اس کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کرے۔ جب بھی آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جائیں تو دیکھیں اور پوچھیں کہ اس کا فارمولا کہاں کا ہے۔ اگر اسرائیل کا ہے تو اس کی کوئی چیز آپ مت خریدیے، اس کے ذریعے سے آپ کم از کم ان کی معاشی تھوڑی بھی اگر آپ ضرب کاری کریں گے تو آپ اس سے، آپ کے پیسے سے وہ ہتھیار خرید کر غریب فلسطینیوں کے اوپر، مظلوموں کے اوپر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسرائیلی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، اسرائیل کے اشیاء کا، مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو نہ خریدا جائے، اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ٹھہر کر ہم دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان ظالموں سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ کووڈ سے دور رہے، خوش رہے، چند دن کے احتیاط، کئی مسائل سے چھٹکارا۔ ضلع پولیس کمشنر کی ہدایت پر جکران پلی میں پولیس کلا برندم کی جانب سے شعور بیداری تقریب کا انعقاد۔ ضلع پولیس کمشنر کارتکیہ کی ہدایت پر آج پولیس کالا برندم کی جانب سے جکران پلی پولیس اسٹیشن حدود میں شعور بیداری اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف انداز میں عوام کو کورونا وبا سے محفوظ رہنے اور پھر کووڈ سے متاثر ہونے پر کسی طرح کی خدمات کی جانے چاہیے، اس کے متعلق شعور بیداری کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ ماسک و سینیٹائزر کا ہر وقت استعمال کرے اور جب سخت ضرورت ہو تبھی گھر کے باہر آئے اور بازاروں میں بھی محفوظ فاصلے پر عمل کرے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی ایسائی و دیگر موجود تھے۔ లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలి, లేకుంటే కేసులు అవుతాయి। ఈ పిల్లలు పెద్దలు అందరూ మాస్కులు ధరించాలి, కంపల్సరీ మాస్కులు ధరించాలి, బయట ఎవరు తిరగద్దు। మరి మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి। మా సర్పంచ్ గారు కూడా మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను, ఇక్కడ మాట్లాడండి। ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی دھراندیشی کے سبب ریاست میں وافر مقدار میں ادویات دستیاب۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی انہوں نے مختلف منڈلز کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا لیا جائزہ۔ وہ عوامی نمائندوں و عہدیداروں کو ہر وقت عوام کی خدمت میں حاضر رہنے کی دی ہدایت۔ آج ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی ہدایت پر ریاستی وزیر امارت و شورا وملا پرشانت ریڈی نے بھیمگل، مورتاڑ، کمرپلی و دیگر منڈلز کا دورہ کیا اور لاک ڈاؤن کے حالات کا جائزہ حاصل کیا۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے
जारी घर घर सर्वे के मुताबिक अवाम से मालूमात हासिल की और इनके रद्द-ए-अमल से वाकिफियत हासिल की। वो खुद पैदल घर घर जाकर अवाम से हालात का जायजा लिया। अवाम ने खुशी व मसरत का इजहार किया और वो रास्ते में हर बड़े व छोटे के साथ अदब के साथ मुलाकात की और इन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोविड के अलामात महसूस होने पर फौरन आशा वर्कर से मुलाकात कर और अद्वियात हासिल करे। इसी तरह महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलावरी अंजाम दे, जिसके बाद इन्होंने सहाफती नशिस्त का एहतमाम करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR कोविड के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आज रियासत में ऑक्सीजन व अद्वियात की कमी नहीं है। इसी तरह अवाम की शिकायत पर इन्होंने खुद सिटी स्कैन की रकम में कमी करने और सिर्फ 2000 रुपयों में सिटी स्कैन करने के अहकामात जारी किए और जिले कलेक्टर को भी इसके मुताबिक कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी गई है और इस कोविड दौर में आशा वर्कर्स व डॉक्टर्स की खिदमत को नाकाबिले फरामोश करार दिया और इनकी खिदमत को सलाम किया और इन्होंने अवाम को भरोसा दिया कि वो इनकी मदद के लिए 24 घंटे हाजिर रहने का भरोसा दिया और आने वाले घर घर सर्वे में अवामी नुमाइंदों को भी साथ रहने की हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके हमरा भीमगल TRS मंडल प्रेसिडेंट, नरसैया टाउन प्रेसिडेंट मलैया लक्ष्मण, MPP महेश, भीमगल बल्दिये माउन मोहम्मद अजमतुल्ला, बल्दिये माउन रजिया सुल्ताना, सरवर हुसैन, जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। KCR గారి ఆదేశాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోవిడ్ బారిన పడుతున్న ప్రజల్ని పలకరించి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని, వాళ్ళకి మనోధైర్యాన్ని నింపటం, అట్లాగే వివిధ ఆసుపత్రుల్లో కోవిడ్ రోగులకు అందుతున్న సేవల్ని మెరుగుపరచడం, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోమని వారు చెప్పారు. వారి ఆదేశాల ప్రకారం గత 4 రోజులుగా మరి ఉభయ జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షలు చేసి అట్లానే నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ దవాఖానాల్లో ఉన్నటువంటి కోవిడ్ పేషెంట్లని వాళ్ళని పరామర్శించి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పి ఆయా ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలు మెరుగుదల చేయడం, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్లు అందుబాటులో ఉంచడం, మందులను అందుబాటులో ఉంచడం, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను అందుబాటులో ఉంచడం, ఆక్సిజన్ బెడ్లను పెంచడం, ఇట్లాంటి అనేక చర్యలు తీసుకొని వారి కోసం చేయడం జరిగింది. ఇవాళ నా నియోజకవర్గంలో నిన్న ఒక 4 మండలాల్లో ఒక 10 గ్రామాలు ఎక్కడైతే ఈ కోవిడ్ వ్యాధి ఎక్కువ ఉన్నదో ఆ గ్రామాలని పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని పలకరించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ భీమగల్ పట్టణంలో ఇప్పుడు రావడం జరిగింది. ఇవాళ భీమగల్ మండలం, కమర్పల్లి మండలం, మోర్తాడ్ మండలం ఈ 3 మండలాల్లోని దాదాపు 7-8 గ్రామాలు వెళ్ళాలని. जिले निजामाबाद में कोविड के 214 ताज़ा केसेस। जिले निजामाबाद में कोरोना वायरस के 214 नए मामला दर्ज हुए हैं। आज 1464 अफराद के रैपिड टेस्ट मुनक्किद करने पर 1250 अफराद को मनफी और 214 को मुस्बित पाया गया। इसी तरह जिले में ताहाल मुस्बित केसों की तादाद 33,537 तक जा पहुंची है। लॉकडाउन और रैपिड टेस्ट किट्स की किल्लत से मुआयनों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है, जिसके बायस मुस्बित केसेस भी कम दर्ज हुए हैं। समंदरी तूफान टौकटे के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इंतबाह। मरकजी हुकूमत ने समंदरी तूफान टौकटे के अगले चंद घंटों में मजीद खतरनाक होने का अंदेशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने हफ्ते को कहा कि बहर अरब के ऊपर हवा के दबाव का इलाका अब समंदर तूफान में तब्दील हो गया है और इसके 18 मई के आसपास पूरबंद और नालिया के दरमियान गुजरात के साहिल को पार करने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपने खुसूसी बुलेटिन में ये बात बताई। इम्कान है कि ये तूफान आइंदा चंद घंटों के दौरान शदीद समंदरी तूफान और आइंदा 12 घंटों के दौरान शदीद से शदीद तरीन समंदरी तूफान के तौर पर इसमें शिद्दत पैदा होगी। इम्कान है कि ये शुमाल मगरिबी सिमत की पेशकदमी करते हुए 18 मई की दोपहर या शाम के दरमियान गुजरात के साहिल पोरबंदर और नालिया को पार करेगा। मरकजी और साहिली रियासतों की जानिब से समंदरी तूफान की तबाहकारियों से बचाव के लिए की तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आजम मोदी ने भयानक समुद्री तूफान टौकने से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहम मीटिंग की है। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान।
महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। 17, 18 और 19 मई को शुमाली साहिली तेलंगाना और जुनूबी साहिली एपी के इलाकों में बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जुनूबी साहिली एपी, यानम में बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रंगारेड्डी और सिद्दीपेट और निजामाबाद अजला में बारिश और सालाबारी हुई। अजीम तरीन दर्ज हरारत 42.6 डिग्री सेल्सियस जिले मेदक में दर्ज किया गया। तेलंगाना को ऑक्सीजन व अद्वियात के कोटे में इजाफा। मरकजी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना के लिए ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और टीकों की सरबराही के कोटे में इजाफा करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को फोन पर ये इत्तला दी। मरकजी वजीर ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि पीर से रियासत को रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरबराही को 5,500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया जाएगा। इसी तरह मरकज ने ऑक्सीजन की सरबराही में भी 200 टन का इजाफा करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि तेलंगाना को ऑक्सीजन छत्तीसगढ़, भिलाई, उड़ीसा के अंगुल और मगरबी बंगाल के दुर्गापुर से सरबराह की जाएगी। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो सरबराही के सिलसिले में मरकज के साथ ताउन करें। मरकजी वजीर ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से रियासत को वैक्सीन के कोटे में इजाफा करने के मुतालबे पर मुस्बित जवाब दिया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि टीकों की दूसरी खुराक को तरजीह दी जाए। मरकजी वजीर ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें दरकार मिकदार में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन की रियासत को सरबराही यकीनी बनाने की हिदायत दी है, ताकि रियासती हाई कोर्ट के फैसले के पस मंजर में कोरोना वबा पर काबू पाने में रियासत की मदद की जा सके। हिंदुस्तान में दूसरी लहर कहीं ज्यादा हलाकत खैज हो सकती है। वबा में कमी के कोई आसार नजर नहीं। WHO सरबराह का बयान। आलमी इदारा सेहत WHO ने इंतबाह देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले की मुकाबले में ज्यादा हलाकत खैज साबित हो सकती है। आलमी इदारे की सरबराह टेड्रोस अधानोम गैब्रेयेसस ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना के बहरान से मुकाबला करने में उनका इदारा भी इस मुल्क की मदद कर रहा है। अब तक WHO ने हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और दीगर तिब्बी साजो सामान हिंदुस्तान को मुहैया किया है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आलमी इदारा सेहत की सरबराह के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की वबा में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश पाई जाती है। कई रियासतों में अब भी अफसोसनाक हद तक नए केस सामने आ रहे हैं। मुतासरीन की दवाखानों में भर्ती और अमवात का सिलसिला जारी है। इस लिहाज से हिंदुस्तान के तई गहरी तशवीश व फिक्र बरकरार है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने मजीद कहा कि जो भी स्टॉक होल्डर्स हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार है। ताहम उनके मुताबिक इमरजेंसी जैसी सूरत हाल अब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाज़ दीगर ममालिक में भी यही सूरत हाल है और वायरस की ये लहर गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में कहीं ज्यादा हलाकत खैज साबित हो रही है। आलमी इदारा सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा है कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता अक्टूबर में पहली बार पाए जाने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले में मौजूदा नई किस्म के जैसे B.1.617 का नाम दिया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी तशवीशनाक किस्म के जिम्मे में रखा गया है। इदारे ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ यही एक वायरस नहीं पाया जाता बल्कि बरतानवी वेरिएंट B.1.17 भी मौजूद है, जिसके तेजी से फैलने के पहले सबूत मिल चुके हैं। तेलंगाना में ब्लैक फंगस की नई वबा, 3 अमवात। कोरोना वायरस से मुतासरीन में शुगर की सतह को मामूल पर रखने डॉक्टरों को हुकूमत का मशवरा। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से ब्लैक फंगस की वबा शुरू हुई है। अजला, आदिलाबाद और निर्मल में चंद अफराद इस नए वायरस से मुतासर हुए हैं, जिनमें 3 अफराद की मौत भी हुई है। कोरोना की वबा के दौरान ब्लैक फंगस की वबा शुरू होने की इत्तलात के साथ ही रियासती हुकूमत ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए ब्लैक फंगस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए एक नोडल सेंटर कायम किया है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने बताया कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले चंद अफराद इस नए वायरस ब्लैक फंगस से मुतासर हो रहे हैं। ब्लैक फंगस से मुतासर होने वाले कोरोना के मरीजों का फिल वक्त गांधी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। ताहम हुकूमत ने सिर्फ ब्लैक फंगस से मुतासरा मरीजों का इलाज करने के लिए कोठी के ENT में नोडल सेंटर कायम किया है। इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के अद्वियात को सरबराह करने की तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हिदायत दी गई है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों को इलाज के दौरान इनके शुगर लेवल को मामूल पर रखने की जरूरत है, वरना ब्लैक
ब्लैक फंगस से मुतासिर होने का खदशा लाहक होता है। कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस से मुतासिर होने से रोकने पर डॉक्टरों को तवज्जो देने की जरूरत है। इस सिलसिले में खानगी दवाखानों को वाज़ेह हिदायत जारी की गई है। इन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस से मुतासिर होने वाले अफराद की अक्सरियत आंखों से मुताल्लिक मसाइल में मुब्तला हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ने पर इस तरह के मरीजों के इलाज के लिए सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल की खिदमत भी हासिल की जाएगी। इन्होंने कहा कि रियासत के डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल की खिदमत भी हासिल करें। इन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल, सरोजिनी देवी आई हॉस्पिटल और ENT कोठी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट्स को हुकूमत ने तालमेल के साथ इस मर्ज के इलाज के लिए मंसूबे को तैयार करने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के बाज़ मुकामात पर ब्लैक फंगस के केसेस दर्ज हुए हैं। बताया गया है कि निर्मल जिले के भैंसा डिवीजन में इस वायरस से 2 अफराद फौत हो गए, जबकि आदिलाबाद जिले के बुध से ताल्लुक रखने वाले एक खातून भी ब्लैक फंगस से फौत हो गई। इसके अलावा अजला आदिलाबाद और निर्मल में चंद अफराद इस वायरस से मुतासर है, जिनमें बाज़ अफराद बीनाई से महरूम हो गए। इस तरह गुज़िश्ता रोज कामारेड्डी जिले में भी ब्लैक फंगस का एक केस सामने आया है। बताया गया है कि बिकनूर मंडल के बरमगेडगी मौजे से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स ब्लैक फंगस से मुतासर हुआ है। जिले डॉक्टरों के मशवरे पर मज़कूरा शख्स हैदराबाद के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज है। हवा में 6 फीट से भी ज्यादा दूर जा सकता है कोरोना वायरस, अमेरिका के CDC का इंकशाफ। अमेरिका में जारी नई हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हवा में 6 फीट से ज्यादा दूरी तक जा सकता है। इसके मुताबिक लोग सांस के बहुत कम खतरों और एयरोसोलाइज्ड ज़र्रात या सीधे छींटों, स्प्रे या आलूदा हाथों से मुंह, नाक या आंख को छूने से मुतासिर हो सकते हैं। इस तरह हवा में 6 फीट से भी ज्यादा दूर जा सकता है कोरोना वायरस। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने कोरोना वायरस के फैलाव से मुतालिक अपनी गाइडलाइंस में ये इंकशाफ किया है। इसके मुताबिक लोग सांस की बहुत कम खतरों और एरोसोलाइज्ड ज़र्रात या सीधे छींटों, स्प्रे या आलूदा हाथों से मुंह, नाक या आंख को छूने से मुतासर हो सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक हवा में सांस लेने वाले बहुत छोटे बूंदे और एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें वायरस होते हैं। वायरस के फैलने का खतरा 3 से 6 फीट के अंदर सबसे ज्यादा होता है, जहां इन बहुत ही कम बूंद और एरोसोलाइज्ड पार्टिकल्स इससे ज्यादा दूरी तक भी जा सकते हैं। ताहम ये इंतबाह भी दिया गया कि वायरस बड़े पैमाने पर घर के अंदर हवा के जरिए भी फैल सकता है। इसके मुताबिक इन नशरियाती वाक़यात में एक मुतासिर शख्स घर में कुछ वक्त जैसे 15 मिनट से ज्यादा और कुछ मामलात में घंटों के लिए इन्फेक्शन फैला सकता है, जिससे हवा में वायरस 6 फीट से ज्यादा की फासले पर मौजूद लोगों को मुतासिर कर सकता है और कुछ मालूमात में मुतासिर शख्स की फौरन बाद इस जगह से गुजरने वाले लोगों में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। लैंसेट मैगजीन में अप्रैल में शाये एक नई तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात को साबित करने के मजबूत सबूत है कि कोविड-19 वबाई मर्ज के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस बुनियादी तौर पर हवा के जरिए फैलता है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से ताल्लुक रखने वाले 6 माहिरीन के इस तजुर्बे में कहा गया कि बीमारी, इलाज व मुआलजे से मुताल्लिक इक़दामात इसलिए नाकाम हो रहे हैं क्योंकि वायरस बुनियादी तौर पर हवा से फैल रहा है। अमेरिका में वाक़े कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के जोस लुई जमीन जे ने कहा कि वायरस की हवा के जरिए से फैलने के मजबूत सबूत है। तेलंगाना में सेहत का कलमदान किसी भी वजीर को रास नहीं आया। तेलंगाना रियासत की कोरोना के सबब सेहत खराब है तो दूसरी तरफ वज़ीर सेहत का कलमदान किसी भी वजीर को रास नहीं आया। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से हुकूमत में दीगर कलमदान की जिम्मेदारी निभाने वज़ीरा के सियासी और निजी सेहत ठीक रही, लेकिन वज़ीर सेहत का कलमदान जिनको भी दिया गया इनकी सियासी सेहत बिगड़ गई और मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हो गया। दिलचस्प बात यह कि राजेंद्र की बरतरफी के बाद जिस वक्त वज़ीर सेहत का कलमदान चीफ मिनिस्टर KCR के हवाले किया गया, इस वक्त वो कोरोना का शिकार थे। जाहिर है कि जब वज़ीर सेहत ही बीमार हो तो फिर रियासत की सेहत का ख्याल किस तरह रखा जा सकता है। इस महज इत्तेफाक कहा जाए या फिर वज़ीर सेहत की खिदमत की, जिस किसी ने वज़ीर सेहत की जिम्मेदारी संभाली उन्हें कम वक्त में वज़ीरात से महरूम होना पड़ा। हो सकता है कि इस पस मंजर में वज़ीर आला KCR वज़ीर सेहत का कलमदान किसी और वज़ीर के हवाले करते हुए खुद को किसी भी तनाज़ से बचा लेंगे। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर राजिया को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ वज़ीर सेहत का कलमदान दिया गया था, लेकिन 10 माह के कलील अरसे में उन्हें न सिर्फ वज़ीर से बरतरफ कर दिया गया बल्कि इनके सियासी मुस्तकबिल को अमलन गहन लग गया।
डॉक्टर राजाजन का ताल्लुक दलित तबके से है। वज़ारत से अचानक बरतरफी की हकीकी वजूहात पर आज तक राज के पर्दे हैं। बज़ाहिर ये है कि राज्य मुख्तलिफ बदउनवानियों में मुलविस थी और इनका रवैया अहदेदारों के साथ ठीक नहीं था। इनके बाद महबूबनगर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी को वज़ारत सेहत की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इनके लिए वज़ारत रास नहीं आई क्योंकि दूसरी मरतबा हुकूमत तश्कील के बाद उन्हें वज़ारत में शामिल नहीं किया गया। कई वज़ार जिन्होंने पहली मियाद में सेहत से हटकर दीगर खलमदान संभाले थे, उन्हें दोबारा काबीना में जगह दी गई, लेकिन किसी भी तनाज़े के बगैर वज़ारत सेहत की जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी को वज़ारत में जगह नहीं दी गई। तेलंगाना में मुस्लिम और एसटी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को खतरा, मराठा तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तेलंगाना के सरकारी ओहदेदार फिक्रमंद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महाराष्ट्र के मराठा तहफ़्फ़ुज़ात को कलअदम करार देने से मुतालिक फैसले के बाद तेलंगाना में मुसलमानों और एसटी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की कोशिश पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से मराठा तबके को फराहम किए गए इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात को कलअदम करार दिया और वाज़ेह है कि मजमूई तहफ़्फ़ुज़ात की हद 50% से तजाविज़ ना की जाए। अदालत ने इंदिरा सायनी केस पर नजरसानी की अपील को भी मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदारों का मानना है कि मुसलमानों और एसटी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मसाई को नुकसान होगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने अप्रैल 2017 को असम्बली में करारदाद मंजूर करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को मौजूदा 4% से बढ़ाकर 12% करने और एसटी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात को 6.5% से बढ़ाकर 9.8% करने का फैसला किया था। ये करारदाद मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत को रवाना की गई है। बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत ने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की फाइल को मुख्तलिफ एतराज़ात के साथ वापस कर दिया है, जबकि एसटी तहफ़्फ़ुज़ात की फाइल के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। माविन कौंसिल अज़मुतुल्लाह की जानिब से मुस्तहिक़ीन में इमदाद की तक़सीम। भीमगढ़ बल्दी माविनीन जनाब अज़मतुल्लाह साहब की जानिब से आइमा मसाजिद, मुअज़्ज़िनीन और दीगर मुस्तहिक़ अफ़राद में माली इमदाद की तक़सीम अमल में लाई गई। इस दौरान तमाम हज़रात ने अज़मतुल्लाह साहब का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में जमीयतुल उलमा सदर हाफिज़ फ़हीम, हाफिज़ रियाज, हाफिज़ जलाल, जाहिद हुसैन, मुंशी इक़बाल साहब, मूसा, मौज़न रेहान, अरशद, सैफुल्लाह हकीम और दीगर हज़रात ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत कोविड के हालात से निपटने के लिए तैयार, वाफिर मकदार में ऑक्सीजन व अद्वियात मौजूद। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने मुख्तलिफ मंडल का किया दौरा व हालात से ली वाकिफियत हासिल। लॉकडाउन के ऐलान के बाद 16 मई को अक़ीदतमंदों के लिए महकमे पुलिस व वक्फ बोर्ड की जानिब से बंद किया गया दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा। खानगी हॉस्पिटल व स्कैनिंग सेंटर इंसानियत की मिसाल पेश करें, मनमानी रकम ना वसूल करे और सिर्फ 2000 रुपयों में सिटी स्कैन निकालने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की हिदायत जारी। बोधन की रहने वाली एक सरकारी टीचर रजिया बेगम ने कोविड दौर में कायम की इंसानियत की नई मिसाल। इन पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। दहशतगर्द इसराइल की तमाम मसनूआत को बायकाट करते हुए अपनी इंसानियत गैरत की मिसाल पेश करे, सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।